جب کسی عبد کو، کسی بندے کو پروردگار کی ذات ایمان کی دولت دے دیتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایمان کی خیر اسی لیے بزرگان دین نے اپنی دعاؤں میں ایمان کی سلامتی اور ایمان کی خیر کی دعا مانگی ہے۔ یہ ایمان کی خیر اور ایمان کی سلامتی ایسی دعا ہے کہ انسان کو جیسے کل کائنات کی نعمتیں مل گئی رب کی طرف سے۔ ویسے تو ہر مخلوق کو نعمتیں مل رہی ہیں اور ہر مخلوق محتاج ہے، اس کی نعمتوں کے لیے ہر دم ہے محتاج ہے، لیکن بندہ مومن پر جس کو ایمان ملا ہے، کیونکہ جس کو ایمان ملا ہے اس کے ایمان کی زندگی بھی اس کے لیے باعث شرف ہے، باعث عزت ہے، اور اس کے لیے جو موت ہے نا، بندہ مومن کے لیے موت، بندہ مومن کی موت بھی خاص موت ہے۔ اس موت کو ایسا ہی ہے کہ جیسے پروردگار کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے کہا کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو، ہر اذان کو اپنی آخری اذان سمجھو، اور اسی لیے ہر آنے والا کلمہ جس طرح وہ پڑھتے ہیں نا ذکر میں، تو وہ نفی اسباب کا جو ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہر آنے والا سانس بھی آخری گویا آخری ہے، اور ہر نکلنے والا سانس بھی گویا آخری سانس ہے۔ بندہ مومن کی زندگی کی نعمت ہے کہ جتنا عرصہ رہے ایمان کی حالت میں اعمال صالح کرتا رہے، بندگی کرتا رہے، اور نیکی اور خیر پھیلاتا رہے، اور اس کی موت بھی، بندہ مومن کی موت بھی سلامتی اور خیر کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان افراد کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خاص افراد ہیں جو بلائے گئے کسی اور کی دعوت پر تھے، بادشاہ وقت نے بلائے تھے، لیکن انہیں بارگاہ رسالت، بارگاہ نبوت کا ادب، احترام اور لحاظ کرنے کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت مل گئی۔ بادشاہ انہیں دولت کے لالچ دے رہا تھا، انہیں مکانات، محلات اور دنیا کی آسائشوں کے اور دنیا کی چیزوں کے لالچ دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے۔ رب کا کلام یہ دراصل ان کا احوال ہمیں اس لیے سناتا ہے، ہماری ایمان کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، ہم مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل سے والدین مسلمان تھے، انہوں نے ہماری پیدائش میں ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی ڈال دی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی ہمارے کان میں بلند کر دی گئی، اور ہمیں کلمہ پڑھا دیا گیا۔ رب کا کلام ہمیں بتاتا ہے، یاد کرو ایمان کی دولت کتنی مشکل سے ملتی ہے۔ اندازہ کیجئے، تصور میں لائیے، خیال میں لائیے کہ میدان ہو اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ایک طرف ہم تو بڑے سستے بک جاتے ہیں، قرآن نے اسی لیے کہا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے بڑا سستا سودا کیا، یہ بڑا سستا بیچ دیتے ہیں۔ اور اندازہ کیجئے کہ ایک طرف بادشاہ کہہ رہا ہے یہ درہم و دینار ہے، یہ سونا چاندی ہے، یہ محلات ہیں، یہ دربار کے تم وزیر ہو جاؤ گے، اور ایک طرف سر بسجود بندگان خدا ہے۔ وہاں پہ سجدہ کرنا، وہ جو اقبال نے کہا نا، اقبال لاہوری نے،
کہ یہ ایک سجدہ دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ نجات کون سا سجدہ دیتا ہے؟ جب کوئی ایسا مرحلہ درپیش آئے. ہمیں تو ایمان بڑی سہولت سے مل گیا ہے، بڑی آسانی سے مل گیا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہے. لیکن اب اس ایمان کا بچاؤ، اس ایمان کا تحفظ، اولیاء اللہ سے پوچھا گیا نا کامیاب کون ہے؟ اولیاء اللہ کی باتیں بڑی اہم ہیں. انہوں نے کہا کامیاب ہمارے ذہنوں میں کامیاب وہ ہے جس نے کوئی نوکری کی، مکان بنا لیا، جس نے کوئی کاروبار کیا، اس نے کوئی پلاٹ لے لیا، محل بنا لیا، لباس اچھا پہن لیا، اچھا کھانا کھا لیا، اچھا رزق مل گیا، اولاد ہو گئی، اولاد صاحب روزگار ہو گئی. ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے. جب اللہ والوں سے پوچھا گیا کامیابی کیا ہے، وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ کامیابی کیا ہے. فنا اور بقا کا ایک مسئلہ تھا، ان کے شاگرد نے پوچھا تو انہوں نے کہا کامیابی یہ ہے کہ میں ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. کامیابی یہ ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے اچھا لباس نعمت ہے، اچھی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے. رزق بھی اچھی نعمت ہے، لیکن یہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل ایمان ہے، ایمان صالح ہے، اور ایمان بچا لینا ہے. جو اپنا ایمان سلامت لے گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اذان کی آواز ہوتی، قربان جائیے ان کے ایمان کی کیا بات ہے، ان کے ایمان کی تو کیا ہی مثال ہے. وہ ایمان جس پر نبی رحمت، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، دو جہانوں کے سردار فرمائے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمائے عثمان کے لیے جنت لازم ہو گئی ہے. آپ کی میٹھی زبان سے، مبارک زبان سے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کئی مرتبہ نکلا. جب آپ نے پانی کا کنواں وقف کیا، جب آپ نے غلہ اناج وقف کیا، جب آپ نے اونٹوں کی قطار جہاد کے لیے وقف کی، مسجد نبوی شریف کے لیے جب آپ نے وقف کیا، کئی مرتبہ فرمایا عثمان کے لیے جنت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی. جیسے ہی آذان کی آواز بلند ہوتی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کب کبھی طاری ہو جاتی، لرزہ طاری ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا. صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ نائب رسول ہیں، اور صرف نائب رسول نہیں داماد رسول ہیں. آپ کے گھر میں امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آئیں، اسی لیے ہم ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والے. ایک بیٹی کا وصال ہوا، آقا کریم نے ایسے کریم ہے ایک اور بیٹی آپ کے نکاح میں تھی. اور قربان جائیے ان کے ایمان اور ان کے اس مرتبے پر. ساتھیوں نے پوچھا آپ تو داماد رسول ہیں، نائب رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، جنت کی بشارتیں موجود ہیں. آپ نے فرمایا جانتے ہو کس کی آواز آئی ہے، کس کا بلاوا آیا ہے؟ اس کے حضور پیش ہونے سے، اس کے سامنے پیش ہونے سے مجھے جو ہیبت اور روب طاری ہے. اور کسی نے پوچھا کہ آپ تو کامیاب ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں، کامیاب میں تب کہلاؤں گا جب میں ایمان سلامت لے گیا. حضرت عثمان فرما رہے ہیں جنتوں کی بشارتیں موجود ہیں، ذی النورین کا مرتبہ موجود ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں گواہ رہنا، اگر میں ایمان سلامت لے گیا تو میں کامیاب. پھر اس تاریخ میں دیکھا، کائنات میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حالت تلاوت قرآن میں شہید کیا گیا، کئی دن کے پیاسے اور اپنے گھر میں محسوس اور تلاوت قرآن کی حالت میں آپ کو. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت لے گئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان ایسی دولت ہے
और ईमान की दौलत का पा लेना, ये उनसे पूछिए, हजरत बिलाल से पूछिए, ये हजरत सलमान से पूछिए। फारस से चले बिकते बिकाते, एक बाजार एक मंडी, कई मंडियों से बिक कर यसरब की उस वादी में पहुंचे। और सुना था यहूदियों के पास रहे, नसरानियों के पास, ईसाइयों के पास रहे, आग की पूजा करने वालों के यहाँ पैदाइश हुई। हर एक से सुना था कि आखिरी नबी उस खजूरों वाली बस्ती में आने वाला है जिसका नाम यसरब है। वहां आके यहूदी के गुलाम हो गए। ईमान की दौलत देखिए कि कितनी कीमती दौलत है और कितनी मुश्किल है ये हासिल कर लेना। हज़रत सलमान, जिस दिन आका करीम की आमद हुई ना वादी यसरब में, उस दिन खजूर के बाग में खजूरें उतारने के लिए दरख्त पे चढ़े हुए, और वो जो आपका मालिक है जिसके आप गुलाम हैं वो बड़ी सख्ती करता है। खजूर का दरख्त ऊंचा होता है, उस पे रस्से बांध के चढ़े हुए हैं, और जैसे ही आवाज आई ना कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कुरैश और हाशिम का, जिनका दावा है कि वो नबी बरहक है, वो वादी यसरब में तशरीफ ला रहे हैं, वहीं से छलांग लगाई, गिर पड़े नीचे। वो भागा मारने के लिए, कम वक्त क्या करता है, हड्डी टूट जाएगी। क्यों गिरा है, किस लिए छलांग लगाई है? हज़रत सलमान फरमाते हैं, कम वक्त कई बाजारों से बिका इसलिए हूँ, कई मंडियों से गुजरा इसलिए हूँ, सारे गिरजे कुलीसे चर्च इसलिए देखे हैं कि नबी आखिर ज़मां का दीदार कर लो। सबसे सुना है कि वो इसी वादी में आने वाले हैं। अब जैसे ही आवाज पड़ी है, अब नहीं रह सकता उनके दीदार के लिए जाना। अब जब सरकार के पास पहुंचे, आका करीम की जियारत से शरफ याब हुए, ईमान की दौलत मिली। आका करीम ने फरमाया कि अब कोई पूछे सलमान से ईमान क्या है, ईमान की दौलत क्या है, कि कितने घर देखे हैं, कितने बाजार देखे हैं, कितने चर्च और कितने मंदिर देखे हैं, और फिर पहुंचे हैं यहाँ। और फिर मोहब्बत कैसी, फिर अकीदत कैसी, फिर ईमान की मंजिल कैसी, कि आका करीम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका करीम ने जनाब सैयदना सलमान रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत देखकर फरमाया कि सलमानो मिन्नी अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से। बीबी पाक सैयदा कायनात के गुलाम रहे, आपके घर के दरवाजे के बाहर रहते, वहीं पे अपनी खिदमत पेश करते, घर का सौदा सलम लाना है, जो मिलना है वो खा लेना है। आका करीम ने ये मोहब्बत देखी, अहले बैत से ये मोहब्बत देखी, फरमाया सलमान मेरे अहले बैत में से है। फारस से आने वाला वो गुलाम जिसका घर का कोई पता नहीं, खानदान का कोई पता नहीं, कितने बाजारों से जिसकी खरीदो फरोख्त हुई, और ईमान की दौलत के लिए कहां कहां पहुंचे। मैं अर्ज कर रहा था कि जब हजरत मूसा के वो उम्मती जो बाजार में लाए गए थे, मैदान में लाए गए थे बादशाह की तरफ से, अब जब उन्हें बादशाह ने देखा ना कि ये तो हजरत मूसा पर ईमान ले आए हैं, उसने डरावा दिया, मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं हाथ पांव काट दूंगा, मैं तुम्हें लटका दूंगा। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, वो कहने लगे अब हम अपने परवरदिगार से मुलाकात करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने एक और मकाम पर फरमाया, ये जो ईमान है ना, ये मुश्किल भी है, ये आसान नहीं है। हम समझते हैं कि ये आसान काम है। इकबाल लाहौरी का ये शेर है, ये शहादत गाहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमने बड़ा आसान समझ लिया है, हमारे लिए जन्नत पड़ी हुई है, हम बस बगैर कुछ किए हम अपना बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कहते हैं ये शहादत गाहे उल्फत में है कदम रखना, ये तो अपने आप को पेश करना है। बादशाह कहता है मैंने दिरहम व दीनार का वादा किया था, मैंने सोना चांदी का वादा किया था, तुमने मूसा के रब पर ईमान ले आए हो, उसके हुजूर सजदा किया है,
मैं तो तुम्हारे हाथ को काट दूंगा, मैं सूली पे लटका दूंगा। अब सुनिए ईमान की परख कैसे होती है, और ईमान कहाँ से इसकी जो है ना वो कसवटी शुरू होती है, पैमाना शुरू होता है। बीमारी आ जाए ना, हम कहते हैं कि ये हमारे लिए ही है। शिकवा, शिकायत, तकलीफ आ जाती है, हमारे लिए लिखी है, औरों के लिए तो कोई नहीं है। अब देखिए ईमान कितना मुश्किल है। अल्लाह ना करे कि हमारे साथ कभी ऐसा मरहला हो कि एक तरफ दिरहम और दीनार हो सामने पड़े हुए और दूसरी तरफ ईमान हो। यकीन करें हम बड़े सस्ते बिक जाने वाले, हमारा ज़र्फ बड़ा कमजोर है। रब फरमाते हैं वहां से न सिर्फ ईमान उन्होंने लिया, अब एक तो है कि ठीक है वो ईमान ले आए, अब इसके बाद आजमाइश शुरू हुई। आजमाइश शुरू ही ईमान के बाद होती है। रब फरमाते हैं मैं ईमान वालों के लिए आजमाइशें हैं, और आजमाइशें कैसी हैं? आजमाइशें ऐसी हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, और ऐसे ही नहीं, मौत ही नहीं बल्कि उनके लिए कभी कभी ऐसे होता है, सूरह बकरा में बताया कि कभी उनके लिए तंगी आती है, तंगदस्ती, फाका कशी आती है, कभी हम उनसे औलाद ले लेते हैं और कभी उनसे समारात ले लेते हैं, आजमाइश आती है। अब आजमाइश देखिए, ईमान मिला कितने मुश्किल से। अब आजमाइश देखिए, आजमाइश कैसी है। बादशाह कहता है मैंने पहले वादा किया था मैं दौलत दूंगा, मैंने तुम्हें दावत दी थी मैं तुम्हें अपने महल में जगह दूंगा, मैं तुम्हें अपने दरबार में वजीर बनाऊंगा, और तुम ईमान ले आए हो मूसा के रब पर, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव काटूंगा। रब का कुरान कहता है अब ईमान की वो परख शुरू हुई है। अब वो जैसे कहते हैं ना होड़ छाड़नी लगी ने, कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। अब ईमान वाले कहते हैं हम अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हैं, हम अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हैं। इसी को कुरान ने एक और जगह बताया कि ये जो तुम कहते हो ना हम ईमान ले आए, हम मोमिन हो गए, हम मुसलमान हो गए, हम कलमा गो हो गए, हम नबी आखिरुल ज़मान की उम्मती हो गए, बड़ा मर्तबा है ये, लेकिन इस मर्तबे के साथ इम्तिहान भी इतना ही है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उनके लिए आजमाइश है, फिर उनके लिए इस्तिकामत। अब इस्तिकामत क्या है? औलिया अल्लाह फरमाते हैं हमने औलिया अल्लाह को करामात से पढ़ा है, हमने औलिया अल्लाह को इस्तिकामत से नहीं पढ़ा। हजरत सैयदना पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात को पढ़ा है, इस्तिकामत से नहीं पढ़ा। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं इस्तिकामत 1000 करामत से बेहतर है, इस्तिकामत 1000 करामत से बेहतर है। इस्तिकामत क्या है? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का सुनिए। हजरत जुनैद बगदादी सैयद ताइफा उन्हें कहा जाता है कि आप एक अपनी जात में कई औलिया की जमातों से बेहतर मर्तबा रखते हैं। सैयद ताइफा कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी को, किसी ने पूछा कि आप मेरे लिए कोई सबक बताएं, उन्होंने कहा तू सिर्फ अल्लाह पढ़ा कर, सिर्फ अल्लाह पढ़ा कर। उसने कहा जी आप कौन? उन्होंने कहा तू पहले सिर्फ ये एक लफ्ज पढ़ना, ये सारी कायनात जमीन और आसमान से भारी है। इस पे इस्तिकामत देखा, एक लफ्ज पे। हम 5 नमाजें एक दिन पढ़ लेना, दूसरे दिन कपड़ों से बाहर हो जाते हैं। इस्तिकामत इबादत में अहम है, इस्तिकामत ही असल मंजिल है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, बुजुर्गाने दीन ने कहा कि इस्तिकामत 1000 करामत से बेहतर है। और इस्तिकामत क्या है कि आपने अगर एक अमल किया है ना, उसको फिर सारी जिंदगी करना है। और औलिया अल्लाह के तरीके में सबसे अहम इस्तिकामत है। हजरत पीराने पीर को पढ़िए, आपकी जिंदगी मुबारक को देखिए कि जिंदगी में इस्तिकामत ही सबसे बड़ी करामत है। हजरत शेख महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाह अलैह
किसी ने पूछा कि आप फर्ज नमाज के अलावा और क्या पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मैं बस इसी पे इस्तिकामत करता हूँ, कि मैंने आपके पास और कोई करामत नहीं देखी। उन्होंने कहा इससे बढ़कर और कोई करामत है नहीं, इस्तिकामत ही करामत है। ये जो हवाओं में उड़ना, पानी पे तैरना, ये तो परिंदे और चरिंदे और बाकी मखलूकात में मौजूद है। औलिया अल्लाह का जो तारुफ कुरान ने दिया, बुजुर्गाने दीन का, बंदगाने खुदा का जो तारुफ कुरान ने दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि उनकी पहचान ये है कि वो अल्लाह के दोस्त हैं, कोई खौफ और गम नहीं है, लेकिन उनकी हालत क्या है? एक तो ईमान वाले हैं, तो दूसरे वो मुत्तकी हैं। ये इस्तिकामत है। तकवा इस्तिकामत है कि अपने हर अमल में इस्तिकामत लाना है। हमारे यहाँ बुजुर्गाने दीन की तालीमात के हवाले से जो बड़ी कमी पाई जाती है वो ये है कि हमारे आमाल में इस्तिकामत नहीं है, हम मुसलसल नहीं कर सकते हैं। और इस्तिकामत ही दरअसल औलिया अल्लाह का रास्ता है, बंदगाने खुदा का रास्ता है, मोमिनीन का रास्ता है और रब के बरगुज़ीदा बंदों का रास्ता है। बंदा कहे कि जी सेहत है तो नमाज पढ़ूंगा, तो नमाज आपकी परख ही उस वक्त करने वाली है ना जब कोई तकलीफ है। हालांकि सेहत वाली ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब नहीं पढ़ी जा रही उस वक्त पढ़ना ही तो इस्तिकामत है, वही तो तकवे की परख होने वाली है। रब फरमाता है हजरत मूसा के उम्मतियों पर इस्तिकामत की आजमाइश ये है कि पहले ईमान मिला है, ईमान की दौलत मिल गई है, अब बादशाह कहता है मैंने पहले तो तुम्हें दिया था कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, अब मैं तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम। अब बंदगाने खुदा की आवाज देखिए, बंदगाने खुदा की इस्तिकामत देखिए, और रब उनकी इस्तिकामत का गवाह बनता है। जो रब की बारगाह में इस्तिकामत पेश करते हैं, बंदगी पेश करते हैं, रब उनकी बंदगी का गवाह बनता है। रब फरमाते हैं कालू, उन्होंने कहा, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की तो आपके ज़हन में होगी ना कि जब सुबह आशूर बीबी सकीना ने कहा ना कि प्यास है, इमाम अली मकाम खैमे से पीछे ले गए और एड़ी, फरमाया एड़ी तो हमारे बाप दादा के तरीके में है, हमारी उंगली के इशारे में दजला और फुरात मुंतजिर है, लेकिन यहाँ इस्तिकामत दिखाने आए। उंगली से इशारा किया, चश्मा निकला, फरमाया बीबी ये पानी यहाँ पीना है या बीबी ये पाक और नाना जान के हाथों कौसर पीना है? उन्होंने कहा बाबा जान मैं आपके साथ हूँ। फरमाया हम यहाँ इस्तिकामत दिखाने आए हैं। इसी को कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो कहता है कि रब मेरा परवरदिगार है, उस पर आजमाइश आती है। सुम्मस्तक़ामू, और जो फिर डट जाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम उसके लिए फरिश्ते भी उतारते हैं। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, उसे न कोई डरा सकता है न उसे कोई गमगीन कर सकता है। हजरत मूसा के उम्मतियों का अहवाल देखिए, ईमान लाए हैं बादशाह के सामने। हमारा ईमान बड़ा आसान है, बड़ा सहूलत वाला है, वालिदैन की तरफ से ईमान मिल गया है, हमने कोई कोशिश नहीं की। रब का कुरान कहता है ईमान फिर इस्तिकामत चाहता है। और इस्तिकामत कैसी है? हमें थोड़ी सी बीमारी आए, हम शिकवा शिकायत पे उतर आते हैं, ये हमारे साथ ही क्यों है, ये परेशानी हमारे लिए लिखी है, ये सारी मुसीबतें हमारे लिए है। रब फरमाते हैं देखो जो मैदान में ईमान लाए हैं, मैदान का ईमान बड़ा मुश्किल ईमान है, और अल्लाह न करे कि कभी हमारे लिए कोई मैदान सजे, हम तो बड़ा सस्ता बेच देने वाले हैं।
हम तो ईमान का सौदा कर देने वाले हैं।